بیٹے وضو کرنا ہے۔ فرید اٹھے، گھلے سے سراہی سے مٹکے سے پانی لیا، ٹھنڈی کا موسم دیکھا پانی بہت ٹھنڈا ہے، کلیجہ تھام کر رہ گئے۔ فرید نے اپنے سے کہا فرید پانی بہت ٹھنڈا، اتنے ٹھنڈے پانی سے تم اپنے پیر کو وضو کراؤ، یہ تمہاری غیرت کو گوارا کیسے ہوگا؟ فرید ابھی بہت ٹائم ہے نماز میں، اٹھو اور یہ پانی اپنے پیر کے لیے گرم کر کے کہیں سے لاؤ، پیارے رات کا سما ہے، ٹھنڈی کا موسم ہے۔ مرید لوٹے میں پانی لیتا ہے اور پانی لے کر اپنے استھان سے، اپنی قیام گاہ سے، اپنے مسکن سے نکل جاتا ہے۔ پیارے وہ رات کا آخر پہر ہے اور یہ مرید ہاتھ میں پانی کا برتن لیے بستی میں ڈگر ڈگر، نگر نگر، گلی گلی، کوچا کوچا، دروازہ دروازہ گھوم رہا ہے۔ کسی مکان سے آگ جلتی ہی دکھائی دے، کسی مکان میں چہل پہل نظر آئے تو میں آواز دے کر گھر والوں کو اٹھا کر دروازہ کھلوا کر آگ جلوا کر اپنے پیر کے وضو کے لیے پانی گرم کرا لوں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ وہ پیر تھا اور وہ مرید تھا۔ بابا فرید کہتے ہیں کہ میں ایک چلتا چلا تھا، ایک دروازے پر جا کر ٹھہر گیا، میں نے دیکھا مکان سے آگ جلنے کے آثار نمودار ہو رہے ہیں، مکان میں کچھ چہل پہل نظر آ رہی ہے۔ میں نے اسی دروازے پر جا کر رکا، دستک دی، آواز دیا، اندر سے آواز آئی کون؟ فرید کہتے ہیں میں نے دروازے پر کھڑے ہو کر کہا میں خواجہ قطب الدین بختیار کاکی کا خادم فرید ہوں۔ کیسے آنا ہوا فرید؟ کہا میرے پیر کو نماز تہجد پڑھنی ہے اور مجھے اپنے پیر کو وضو کرانا ہے، پانی بہت ٹھنڈا ہے، میں پانی لے کر آیا ہوں، آپ کا احسان ہوگا مجھ پر اگر میرے پیر کے وضو کے لیے تم ذرا پانی گرم کر دو۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ فرید کہتے ہیں اتنا سنا، اندر سے ایک خاتون چلی، دروازہ کھولا اور ایسی ہی دروازہ کھولا، میں نے ہاتھ بڑھا کر پانی کا برتن پیش کیا، خاتون اللہ آپ کو کنیز کا فاطمہ خاتون نے جنت کا صدقہ عطا فرمائے، اے خاتون مجھ پر احسان کرو، میرے پیر کے لیے پانی گرم کر دو۔ اس عورت نے دیکھنے کے لیے کتنا شیدائی ہے اپنے پیر کا، یہ اپنے پیر کا کیسا محبت، کیسا دیوانہ ہے، اس نے آزمائش کے لیے، امتحان کے لیے کہا فرید پانی تو گرم ہم کر ہی دیں گے، لیکن پانی گرم کرنے سے پہلے تمہاری آنکھ ہمیں بڑی خوبصورت دکھائی دے رہی ہے، سبحان اللہ لگ رہی ہے تمہاری آنکھ۔ بابا فرید نے کہا بلا وجہ کی بات نہ کرو، ہم جو کہہ رہے ہیں ہمارا کام کر کے ہم پریشان کرو۔ عورت نے کہا نہیں فرید پانی تو گرم ہوگا لیکن بغیر معاوضے کے نہیں، بغیر اجرت کے نہیں، بغیر بدلے کے نہیں۔ کہنا کیا چاہتی ہو؟ تو اس عورت نے کہا تھا فرید آگ تمہاری اچھی لگتی ہے، تم ہمیں آگ دو، ہم تمہارے پیر کے لیے گرم کر کے تمہیں پانی دیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ عورت نے کہا آگ، فرید نے کہا واقعیتاً چاہیے؟ فرید اس وقت تک پانی گرم کرنے کا کوئی کام نہیں ہے جب تک کہ آگ دینے کا وعدہ نہیں۔ فرید نے پانی کا برتن بڑھایا، کہا اسے تم چولہے پر رکھو، اندر سے چھری یا چاقو لے کر آؤ، ہم تمہیں آگ دیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ عورت نے وہ پانی چولہے پر رکھا، اندر سے چھری لی، چاقو لیا، فرید کے پاس، فرید لو اپنی آنکھ ہمارے حوالے کرو۔ فرید نے چھری لے کر آگ کے گھڑے میں چھری کی نوک ڈالی، زور دے کر دبا کر آگ کا ڈھیلا کھینچ کر باہر۔ پیارے وہ پیر قیام گاہ میں بیٹھ کر سارا منظر دیکھ رہا ہے، ادھر مرید، خادم، غلام پانی کے بدلے میں عورت کو آگ دے رہا ہے۔ سبحان اللہ۔ خواجہ قطب الدین بختیار کاکی اپنی قیام گاہ میں بیٹھ کر یہ سارا منظر دیکھ رہے ہیں۔ سبحان اللہ۔ عورت میرے فرید سے پانی کے بدلے میں آگ مانگ رہی ہے، میرے فرید نے آگ دینے کا وعدہ کیا ہے، عورت نے پانی رکھا ہے، فرید دیکھ رہے ہیں اور خواجہ دیکھ رہے ہیں۔ عورت اندر سے چھری لے کر چلی ہے، خواجہ قطب الدین ملاحظہ کر رہے ہیں، فرید کے ہاتھ میں آ کر اس نے چھری دی ہے، خواجہ دیکھ رہے ہیں۔ فرید نے چھری لے کر آگ کے گڑھے میں، سوراخ میں، آگ گڑھے میں اس نے چھری کی نوک کو داغا ہے۔ فرید خواجہ قطب الدین بختیار کاکی دیکھ رہے ہیں، فرید نے آگ کا ڈھیلا نکالا، پکڑ کر کھینچا اور اٹھا کر عورت کی ہتھیلی پر رکھ دیا۔ مجھ خادم کی تو آگ لے لے، لیکن میرے آقا، میرے مرشد، میرے پیر خواجہ قطب الدین بختیار کاکی کے لیے بڑی جلدی سے تو پانی گرم کر دے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ عورت نے فرید کی آگ کا ڈھیلا ہاتھ پر رکھا اور بڑی جلدی سے پانی گرم کر کے فرید کے حوالے کیا۔ ادھر فرید نے آگ پر پٹی باندھی، گرم پانی لیا اور بڑی تیزی کے ساتھ اپنے مرشد کی بارگاہ میں، خواجہ قطب الدین بختیار کاکی کی بارگاہ میں پہنچے۔ سرکار پانی لے آیا ہو، حضور وضو فرما لے۔
ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी उठे तो अब शागिर्द, अब खादिम अपने मखदूम को, मुरीद अपने पीर को वजू करा रहा है। ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी ने हाथ धोए, धीरे से मुस्कुराकर नजर उठाकर फरीद की आंख की तरफ देखा और मुस्कुराकर फरमाते हैं, फरीद आंख पर पट्टी कैसी है? आंख पर पट्टी को वली है। तो फरीद धीरे से अर्ज करते हैं, सरकार आंख आ गई है, आंख आ गई है। समझते हैं आप, आंख आ गई है यानी जब आंख दुख आती है तो एक मुहावरा है, बोला जाता है आंख आ गई है। जब आशोबे चश्म होता है बोला जाता है आंख आ गई है। किचड़ा जाती है बोला जाता है आंख आ गई है। फरीद ने कहा, सरकार आंख आ गई है इसलिए मैंने पट्टी बांध ली है। ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी धीरे से मुस्कुराकर फरमाते हैं, फरीद आंख आ गई। जी हुजूर आंख आ गई है। फिर आपने कहा, फरीद आंख आ गई। इधर फरीद फिर कहते, सरकार आंख आ गई है। तीसरी मर्तबा, समझ रहे हैं मतलब समझ रहे हैं। इधर मुरीद कहता है, सरकार आंख आ गई है। उधर फरीद, वो फरीद का पीर बोलता है, फरीद आंख आ गई है। तो फरीद तो कहना ये चाहते थे, छिपाना चाहते थे, सरकार आंख दुख आई है इसलिए मैंने आंख पर पट्टी बांध ली है। और उधर पीर कहते हैं, फरीद दुखी थी लेकिन अब ठीक हो रही है, आंख आ रही है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। एक मर्तबा का फरीद आंख आ गई, जी सरकार आंख आ गई। दोबारा फरमाया, फरीद आंख आ गई, सरकार आंख आ गई। तीसरी मर्तबा ख्वाजा कुतुबुद्दीन ने कहा, फरीद आंख की पट्टी खोल दे, आंख वापस आ गई है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलक आला हज़रत, ख्वाजा का हिंदुस्तान, फैज़ान औलिया इकराम, जश्न ईद मिलादुन नबी, हजरत अल्लाह मौला अखलाक में साहब क़िबला, सरज़मीन का जुटाना। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। फरीद पट्टी खोल दे, आंख आ गई। कसम खुदा की, इधर खादिम ने मखदूम का हुक्म सुनकर आंख से पट्टी खोली। क्या बात है, कसम रब्बे काबा की, देखा तो आंख के घड़े में आंख का ढेला जैसे था वैसे ही है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। क्या बात है। वो पीर थे, कौन थे? पीर। और आज के पीरों का तो हाल मत पूछिए, अल्लाह अपना फजल फरमाए। दो पीरों के दो मुरीदों में झगड़ा हो गया जी। कारी जाकिर साहब निकल रहे थे, कहा हजरत जरा ठहरिए, कहा क्या हुआ? बड़ी बात खराब हो गई। का कुछ तो बताओ। कब बात ये खराब हो गई, ये मेरे पीर के बारे में, मैं इसके पीर के बारे में। कहा क्या? कि ये कहता है तेरा पीर अच्छा नहीं मेरा अच्छा, और मैं कहता हूं तेरा अच्छा नहीं मेरा अच्छा। कारी साहब दोनों के पीरों को जानते थे। कहा आप दोनों को हजरत पहचानते, जरा फैसला कर दीजिए किसका अच्छा। तो कारी साहब ने कहा, हम खूब जानते हैं तुम्हारे दोनों के पीरों को, वक्त बहुत कम है, मैं बड़ी जल्दी में हूं। फैसला नस्र में नहीं बल्कि नज़्म एक शेर में मैं तुम दोनों के पीरों का फैसला करेगा। बहुत अच्छा हजरत, शेर भी हो जाएगा फैसला भी हो जाएगा। का सुनो, तुम दोनों अपने पीरों का हाल पका लो दूध में चावल, इसी को खीर कहते हैं। पका लो दूध में चावल, इसी को खीर कहते हैं। और जो सारी खीर खा जाए उसी को पीर कहते हैं। हजरात ये पीरों का हाल है। एक वो पीर था, वो मुरीद था, प्यारे फरीद ने अपने पीर को वुजू कराने के लिए पानी गर्म करने के बदले में अपनी आंख दे दी। और प्यारे जब ये कमाल, जब ये खिदमत करने के बाद अल्लाह ने अपने बंदे को वो कमाल अता फरमाया। प्यारे बैठे ये पाक पटन में और अपने मुरीदों को जहां पाए वहां देख ले, अपने चाहने वालों को जहां चाहे वहां से देख ले। यही बाबा फरीद गंजे शकर है। एक दिन अपने पीर की बारगाह का इरादा करके अपने स्थान से चले, अपनी क़ियामगाह से चले, अपनी खानकाह से चले, जिक्र इलाही करते हुए बियाबान सहराओं में, लकतक मैदानों में, शमशान जंगलों में सफर तय करते हुए हजरात जंगल में एक दरख्त के नीचे आकर बैठ गए। जिक्र इलाही में मशगूल है। कुछ देर सोचा आराम भी हो जाएगा, बैठकर जिक्र इलाही भी हो जाएगा। फरीद एक दरख्त के नीचे बैठे हुए जिक्र इलाही कर रहे थे। एक परिंदा उड़ता हुआ आया और उसी शाख पर आकर बैठा और वो भी चहचहाने लगा। फरीद ने एक बार नजर उठाकर देखा,
देखा परिंदा चहचहा रहा है, दोबारा फिर देखा, तीसरी मर्तबा फरीद ने फिर देखा और तीसरी मर्तबा देखकर फरीद फरमाते हैं ये मर क्यों नहीं जाता, मैं जिक्र इलाही कर रहा हूँ और तू मेरे जिक्र में खलल डाल रहा है, मर क्यों नहीं जाता। इतना फरमाया फरीद ने, वो परिंदा वहीं शाख से तड़पा, जमीन पर आकर तड़प कर ठंडा हो गया, मर गया। एक जुमले पर मर क्यों नहीं जाता। फरीद ने कुछ देर जिक्र इलाही किया, उसके बाद परिंदे पर नजर डाली और उन्हें एहसास हुआ। फरीद सोचने लगे फरीद तुमने बुरा किया, तुम जिक्र कर रहे थे अपनी जबान में और ये परिंदा खुदा का जिक्र कर रहा था अपनी जबान में। तुम भी जाकिर थे, परिंदा भी जाकिर था, तुम भी खुदा का जिक्र कर रहे थे, परिंदा भी अपनी जबान में खुदा का जिक्र कर रहा था। फरीद तुमने बुरा किया, एक जाकिर ने दूसरे जाकिर को शाख से गिराकर ठंडा कर दिया। हजरत फरीद को जब एहसास हुआ, फरीद को जब ख्याल आया तो फरीद के हाथ में जो तस्बीह थी वही तस्बीह आपने उस परिंदे के ऊपर घुमाई और कहा परिंदे मैंने अच्छा नहीं किया, मुझसे गलती हो गई, अल्लाह के हुक्म से जैसा था वैसा ही हो जा, कसम खुदा की। इधर वो तस्बीह के दाने परिंदे के बाजुओं पर पहुंचे, उधर परिंदा फड़फड़ाया, जमीन से उड़ा और उसी शाख पर जाकर बैठा। फरीद अब वहां से आगे बढ़े तो आज एमपी में जो शहर झांसी है बड़ा मशहूर शहर है प्यारे, ये उस दौर में एक छोटा सा गांव था झांसी। हजरत फरीद उस जंगल से चले, उस इलाके से चले, उस पेड़ के नीचे से हटे और प्यारे जहां आप जिस दरख्त के नीचे बैठकर अपने परिंदे को गिराया था वहां से झांसी 150 किलोमीटर की मसाफत की दूरी पर था। फरीद मंजिलें तय करते हुए वहां से चले, झांसी पहुंचे और झांसी पहुंचने के बाद आपको प्यास की शिद्दत हुई। झांसी गांव के बाहर एक चश्मा था, औरतें उस चश्मे से पानी भर रही थी। हजरत फरीद एक तरफ जाकर खड़े हो गए। पहले का दस्तूर था, पहले का ये उसूल था जब मुसाफिर चश्मे के किनारे कुछ फासले पर आकर खड़ा हो जाए तो पानी भरने वाली औरत हो या मर्द वो समझ जाता था मुसाफिर है, प्यासा है, इसे बगैर कहे पानी पिला दिया जाए। वो औरत हो या भरने वाला मर्द हो बगैर कहे मुसाफिर को पानी पेश करता था। फरीद भी जाकर खड़े हो गए, कोई खातून मुझे पानी पिला देगी मैं शिकम सैर हो जाऊंगा। फरीद कहते हैं मैं खड़ा हूं और मियां वो औरतें आ रही हैं, पानी भर रही हैं, जा रही हैं, किसी ने मेरी तरफ कोई तवज्जो ना दी, मेरा कोई ख्याल नहीं किया, किसी ने मुझे पानी पेश नहीं किया। फरीद कहते हैं सारी औरतें पानी भरकर चली गई, एक औरत बची थी, उस औरत ने डोल लिया, रस्सी ली और मियां उस डोल को उस चश्मे में डाला, वो खींचना चाहती थी। मुझे ख्याल पैदा हुआ, सारी आई पानी भरकर चली गई, मुझे किसी ने पानी नहीं दिया, अगर इसी तरह खामोश रहे तो ये भी पानी लेकर चली जाएगी, रोज साथ में डोल और रस्सी भी ले जाएगी, फिर तो तुम्हारे पास पानी निकालने का कोई साधन भी नहीं रहेगा। ए फरीद अब खामोश ना हो, जबान खोलो और अपनी प्यास का इजहार इस औरत के सामने करके इससे पानी मांग लो। फरीद के दिल में ये ख्याल पैदा हुआ ही था, जैसे ही ख्याल पैदा हुआ औरत डोल खींच रही थी, औरत तो डोल वही छोड़ा, पैर से रस्सी को दाबा और पैर के नीचे रस्सी दाब कर औरत फरीद की तरफ मुखातब होकर कहती है ए फरीद सब्र करो सब्र। सारी चली गई लेकिन मैं तुम्हें बगैर पानी पिलाए नहीं। सुभान अल्लाह, सब्र करो, सब्र से काम लो, कहीं मेरे साथ वो मत कर देना जो तुमने जंगल में परिंदे के साथ किया था। सुभान नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, फैज़ान औलिया इकराम, हजरत अल्लाह मौला अखलाक में सब किबला, सरज़मीन का झूठाना। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वो मत कर देना जो तुमने परिंदे के साथ जंगल में किया। बेशक अरे जरा सोचिए, फरीद की प्यास तो दूर हो गई, क्या बात है, सुभान अल्लाह। अब फरीद इस चक्कर में लग गए यार वो इतनी दूरी पर ये सारा मामला, इससे कोई शनासा नहीं, कोई मुलाकात नहीं, मेरा झांसी गांव में कोई शनासा नहीं, बेशक, लेकिन इसे मेरा नाम किसने बता दिया, फिर वो परिंदे का मामला इसे यहाँ से कैसे मालूम हो गया। जी आज तो भूल गए। फरमाते हैं औरत अब पानी बाद में, पहले ये बता तुझे मेरा नाम किसने बता दिया, जी वो जंगल का वाकया तुझे कैसे मालूम हो गया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। प्यारे वो औरत थी, खातून थी, फातिमा की कनीज थी, इस्लाम की शहजादी थी, मिल्लत की बेटी थी। बेशक औरत कहती है फरीद हमने यहां बैठकर तुम्हें पहचाना,
तुम्हारा नाम जाना और घर में बैठकर परिंदे का शाख से जमीन पर गिरना भी देखा और जमीन से फड़फड़ाकर उड़कर उसी शाख पर बैठना भी देखा। सुभान अल्लाह। जंगल के नीचे से उठकर तुम्हारा झांसी की जानिब हमने चलना भी देखा। फरीद कहते हैं ये सब कुछ कैसे? कहा मैंने कश्फ से, अपनी रूहानी ताकत से, अल्लाह के अता करदा पावर से मैंने अपनी विलायत से तुम्हें पहचान लिया, तुम्हारा नाम जान लिया। सुभान अल्लाह। बैठकर मैंने अपनी विलायत के जरिए से तो उस परिंदे का गिरना भी देखा, उड़ना भी देखा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। फरीद फरमाते हैं औरत तुझे ये कश्फ की दौलत कैसे मिली, ये रूहानी ताकत तुझे कैसे मिली, ये विलायत तुझे कैसे मिली? तो औरत कहती है फरीद ये विलायत, ये कश्फ की दौलत, ये रूहानी ताकत मुझे मेरे शौहर की दुआ से मिली है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। शौहर की रजा से मिली है, शौहर की खिदमत से मिली है, शौहर की दुआ से अल्लाह ने मुझे वक्त का वलिया बना दिया। अल्लाह ने वो पावर अता फरमा दिया कि मैं अपने मकान में बैठकर 150 किलोमीटर की दूरी पर शाख से परिंदे का गिरना भी देख लेती हूँ, जमीन से उड़कर शाख पर बैठा। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलक आला हज़रत फैज़ान हुज़ूर मुफ्ती आज़म हिंद हज़रत अल्लाह मौला अखलाक़ मसहब क़िबला सरज़मीन कैंचू टांडा। सुभान अल्लाह। औरत कहती है फरीद ये शौहर की दुआ से, बेशक शौहर की खिदमत से, बेशक। अगर इजाजत हो तो बात पूरी कर दूं, जी जी बोलिए, वरना मैं बैठ जाऊं। इजाजत है? मैंने आपसे पहले कह दिया था। बोलिए। बस इतनी इजाजत दीजिए कि मैं ये बात पूरी करके आपको, बिल्कुल अगर आप हमसे परेशान हैं तो हम आपसे परेशान। आप शायद ये ज्यादा होगा तो दूसरा तीसरा जलसा होगा आपका, और मैं जो चांद तुलू हुआ है 12वीं शरीफ का, जब से लेकर अब तक 2-3 रातें वो भी ट्रेन ही में, बाकी लगातार ये मामला चल रहा है और ये आखिर तक, और उसके बाद में गौसे आदम का फैजान शुरू हो जाएगा। बेशक। सुभान अल्लाह। क्या बात, तवज्जो है जी। हजरत वो औरत थी, और आज तो आलम ये है कि खिदमत उल्टी हो रही है। बेशक हो रही है ना जी। और अगर मत कीजिए सुबह होते ही घर में झगड़ा, अजी रात ही में जी। एक साहब के पड़ोस में 2 मियां बीवी बहुत लड़ते थे, पड़ोसी बहुत परेशान। एक दिन घबरा कर तंग आकर सुवाई पहुंच गया और पड़ोसी जाकर बोला बे क्या तूफान बदतमीजी है, सुबह होती है लोग अल्लाह का नाम लेते हो, तुम लड़ना शुरू कर देते हो जी, क्यों झगड़ा करते हो? तो उस घर का मियां बोला पड़ोसी अगर झगड़े की पहल मैं करता हूं तो अभी मर जाऊं। क्या कहा? अगर झगड़े की पहल मैं करता हूं तो अभी मर जाऊं। औरत ने फौरनी आके बढ़कर शौहर के मुंह पर हाथ रख दिया, हाय अल्लाह ये क्या कह दिया, अगर तुम मर गए तो मेरा क्या होगा, इन बच्चों का क्या होगा जी, इस घर का क्या होगा, ये निगरानी देख रेख कौन करेगा? खुदा के वास्ते ऐसा ना कहो। पड़ोसी बोला तुम हरकत करती हो, तो अब उसके जुमले सुनिए। शौहर ने कहा अगर मैं पहल करता हूं तो अभी मर जाऊं। चीख पड़ी हाय अल्लाह हमारा क्या होगा। अब पड़ोसी से कहती है पड़ोसी अगर झगड़े की पहल मैं करती हूं तो मैं कसम खाकर कहती हूं अभी रांड हो जाऊं। शौहर ने कहा था मैं मर जाऊं, तब तो चीख पड़ी, और अब कसम खा रही है कि अगर झगड़े की पहल मैं करती हूं तो अभी रांड हो जाऊं। पड़ोसी मरेगा तब रांड होगी? नहीं। देख रहे हालत आप, घर घर खाना जंगियां जी, घर घर हालात। अल्लाह अपना फजल फरमाए प्यारे। आमीन। औरत सुभान अल्लाह, ये 3 हैसियतें, इसकी 3 नौयतें हैं प्यारे। कभी ये बेटी, कभी बीबी, कभी माँ, एक ही औरत बेटी भी है
बीबी भी है, माँ भी है, 3 हैसियतें हैं और इसकी तीनों हैसियतों का जवाब नहीं। 3 नौयतें हैं, इसकी तीनों नौयतों का जवाब नहीं। जब बेटी है वालिदैन के लिए रहमत है, बीबी बनी शौहर के लिए रहमत है, और जब माँ बन गई तो औलाद के लिए इसके कदम के नीचे जन्नत है। बेशक सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नबी की अंजुमन सजी है, उस शाद बैठे हैं, परवाने शमा पर निसार हो रहे हैं, सुभान अल्लाह। सहाबी खड़े होते हैं, दस्तबस्तार करते हैं, आका अल्लाह ने 3 बच्चियां अता फरमाई हैं, 3 बेटियां दी हैं। सुभान अल्लाह। नबी का दरिया करम जोश में है, पैगंबर मूड में है। सहाबी का अंदाज शायद कुछ और रहा हो, शायद 3 बेटियां बताकर सहाबी गुलाम कहना कुछ और चाहते हो, लेकिन नबी का दरिया करम जोश में है। सहाबी अर्ज करते हैं, सरकार अल्लाह ने 3 बेटियां दी हैं, 3 बच्चियां दी हैं, 3 शहजादियां हैं। सरकार का दरिया करम जोश में है। पैगंबर मुस्कुराकर फरमाते हैं, ए मेरे गुलाम, तू बड़ा खुशकिस्मत है, अगर तूने इन 3 बच्चियों का बाइज्जत अपने मकान से रुखसत कर दिया तो तू जन्नती है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सरकार 3 बेटियों पर जन्नत अता फरमा रहे हैं। नबी ने फरमाया तुम जन्नती। अब दूसरे सहाबी खड़े हुए, उन्हें ख्याल आया सरकार ने 3 पर जन्नत दी है, देखिए 2 वाले का हाल क्या हो। खड़े होकर अर्ज करते हैं, आका 3 वाले को जन्नत अता फरमा दी, हुजूर मेरे पास तो 2 ही बच्चियां हैं, 2 ही बेटियां हैं। नबी फरमाते हैं तुम भी जन्नती हो। तीसरे खड़े हो गए, अर्ज करते हैं सरकार मेरे पास तो 1 ही है। नबी फरमाते हैं तुम भी जन्नती हो। चौथा गुलाम खड़ा हुआ, चौथा दीवाना खड़ा हुआ, चौथा मस्ताना खड़ा हुआ, चौथा आशिक खड़ा हुआ। जबान लरज रही है, बदन कांप रहा है, आंख से आंसू सावन और भादों की तरह बरस रहे हैं। चौथा गुलाम रोकर अर्ज करता है, ये आका कुर्बान जाऊं आपकी रहमतों के, सरकार कुर्बान सदके जाऊं आपके। ए मेरे आका 3 बेटियां अल्लाह ने दी हैं, आपने जन्नत अता फरमा दी। उसे 2 बेटियां अल्लाह ने अता फरमाई हैं, आपने जन्नत दे दी। 1 बेटी मौला ने दी है, आपने जन्नत दे दी। 3 बेटियों वालों को जन्नत आपने दी, 2 बेटी वाले को जन्नत आपने दी, 1 बेटी वाले को जन्नत आपने दी। सरकार मुझको सिर्फ कम नसीब के पास तो 1 भी बच्ची नहीं, मेरे पास 1 भी बेटी नहीं। नबी फरमाते हैं, ए मेरे गुलाम जा, तू अपनी बहन की परवरिश करके उसे घर से रुखसत कर दे, तो अभी जन्नती है सरकार। और अगर उसने पलट कर कहा हो हुजूर घर में बहन भी नहीं है, तो नबी का दरिया करम जोश में पैगंबर ने मुस्कुरा कर फरमाया, जा बेटी की पैदाइश की तमन्ना कर ले, तो भी जन्नती है। ये बेटी वो नेमत है, मदीने के ताजदार बेटी की विलादत की आरज़ू पर जन्नत अता फरमा रहे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत फैजाने हुजूर मुफ्ती आज़म हजरत अल्लाह मौला अखलाक नसाब क़िबला सरज़मीन का जुटाना। सुभान अल्लाह, सुभान। वालिदैन के घर है तो रहमत, सुभान अल्लाह। शौहर की दहलीज पर कदम रखा तो नबी फरमाते अच्छी बीबी दुनिया में जन्नत। सुभान अल्लाह। अच्छी बीवी दुनिया में जन्नत। बेशक अच्छी बीवी जी। सफेद हो, बिल्डिंग वाले की बेटी हो, बंगले वाले की हो तो अच्छी, कोठी वाले की हो तो अच्छी, जिम्मेदार की हो तो अच्छी नहीं प्यारे, झोपड़ी वाले की हो, गरीब की हो, लेकिन उसकी पेशानी में सिजदों की तड़प हो। सुभान अल्लाह। गरीब की हो, फातिमा के नक्शे कदम पर चलने वाली। सुभान अल्लाह। गरीब की हो, राबिया बसरिया का किरदार पढ़कर उस पर जिंदगी गुजारने वाली हो। गरीब की हो, लेकिन मैदान करबला में मलाजिम झेलने वाली सकीना का कंदाज, उसकी झलकियां उसकी जिंदगी में पाई जाती हो। गरीब की हो, वो बीबी दुनिया में जन्नत है, जो साहिबे किरदार हो, जो बाखलाक हो, जो साहिबे किरदार हो, जो कुरान की तालिया हो, जो आबिदा हो, जो जाहिदा हो, जो साबिरा हो, जो मुत्तकिया हो। वो अगरचे काली भी हो, लेकिन ऐसी बीबी दुनिया में शौहर के लिए जन्नत है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके
فضل فرمائے. بتانے کی ضرورت نہیں، حالات آپ کی نظروں کے سامنے ہیں بے شک. سامنے ہیں. اجازت ہے؟ اجازت ہے تو بولیے. اچھا ادھر سے مجھے آدیش ہوا تھا کہ جی آپ، لیکن اب میں سمجھ نہیں پا